Hello, student. I am Dr. Vinod Mehla, Assistant Professor of Mathematics, Government College for Girls, Pravdi, Kannada. Today, the topic of our discussion is gradient, divergence, and curl. This is from vector calculus. We divide this topic into two lectures. In the first lecture, we will learn del operator, gradient of scalar point function, level surface, geometrical interpretation of gradient, directional derivative, some example relative to above, and physical significance of gradient. Before starting this lecture, you need to be familiar with scalar and vector point function and partial derivative. Scalar and vector point function. First we define point function. A point function u equal to fp is a function that assigns some number or value u to each point p of some region R of space. Scalar point function. A scalar point function is a function that assigns a real number that is a scalar to each point of some region of space. Means अगर रीजन के हर एक पॉइंट के लिए हमारे पास कोई रियल नंबर है मींस स्केलर है तो हम उस फंक्शन को कहेंगे स्केलर पॉइंट फंक्शन u इक्वल टू फाई ऑफ एक्स वाई जेड. A scalar point function defined over some region is called a scalar field. A scalar field which is independent of time is called stationary or steady state scalar field. Example, the temperature distribution within some body at a particular point in time. And second example is density distribution within fluid at a particular point in time. Vector point function. A vector point function is a function that assigns a vector to each point of some region of space. Means अगर region के हर एक point के लिए there is assigned a vector f, then f is called a vector point function. We can write f equal to f1i, f2j, f3k, where I, j, k are unit vector along x, y, and z direction, respectively. A vector point function defined over some region is called a vector field. A vector field which is independent of time is called stationary or steady state vector field. Gravitational field of Earth, electric current carrying wire, magnetic field generated by a magnet are the example of vector point function. Partial derivative. If we have a function in a space, say this is a scalar point function fx, y, z, fx plus delta x, y, z minus fx, y, z divided by delta x, limit delta x approach to 0. If this limit exists, this is nothing but the partial derivative of this function f with respect to x. Here y and z are constant. And this is known as slope of f in the direction in the x direction. Similarly, fx, y plus delta y, z minus fx, y, z divided by
delta y. If this limit exists, limit delta y approach to 0. This is nothing but a partial derivative of this function f with respect to y. Curly f by curly y. And this is the slope of f in y direction. Similarly, we can define curly f by curly z. Same in case of a vector valued function. Now, higher ordered partial derivatives. If f is a function of three independent variable x, y, z, then we see that curly f by curly x is also a function of x, y, z. We can take partial derivative of this curly f by curly x with respect to x, known as curly square f by curly x square. Curly f by curly y is a function of y, so we can take derivative with respect to y. Curly square f by curly y square. Curly f by curly y, curly by curly x means the derivative of this function with respect to x. Curly square f by curly x curly y. And similarly this. And the last two derivatives are called mixed derivative. Now we are in position to start our lecture. We start with dull operator. We define dull operator. Dull equal to curly by curly xi plus curly by curly yj plus curly by curly zk. This is the definition of a dull operator. This is known as vector differential operator, and something that has no meaning by itself, but it is useful for defining gradient, divergence, and curl. This is also known as nebula. Gradient, divergence, and curl are the result of applying the del operator to various kinds of function. When del operator applied to scalar point function, we get gradient, and divergence and curl are when when del operator applied to vector point function. The gradient is what you get when you apply del by a scalar point function. Now we define gradient. Let phi be a scalar point function that is defined and differentiable at each point in a certain region of space. The gradient of phi is a vector point function defined h. Grade phi equal to del phi equal to curly phi by curly xi plus curly phi by curly yj plus curly phi by curly zk. This is the definition of grade phi, gradient of scalar point function. In other words, grade phi is a vector whose component along x, y, z axis are the partial derivative of phi with respect to x, with respect to y, and with respect to z respectively. Now we define level surface. A level surface of function w equal to phi with three variable is a surface phi equal to c, where the function has the constant value. I equal to c is called level surface. For example, f equal to 10 e raised to power minus 9x square minus 4y square minus z square equal to c. This is an example of level surface. And the value of this function c lie between 0 to 10. And this is a graph of level surface when the value of c is 8, level surface. Geometrical interpretation of gradient.
gradient as a normal. हमारे पास ये लेवल सरफेस है, फाई ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी। इस पे एक पॉइंट P है जिसके पोजीशन वेक्टर R है, और एक हमने ये एज्यूम किया हुआ है Q जिसका पोजीशन वेक्टर R प्लस डेल्टा R है। इसका नेबरिंग लेवल सरफेस पे है पाई प्लस डेल्टा पाई। अब हम ग्रेड फाई के साथ डेल्टा आर का डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे। बाय डेफिनेशन द ग्रेड फाई करली फाई बाय करली एक्स आई करली फाई बाय करली वाई जे करली फाई बाय करली जेड। इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे विद डेल्टा आर। डेल्टा आर इज डेल्टा एक्स आई डेल्टा वाई जे डेल्टा जेड के। अब इसका डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई वन होता है, तो वी गेट curly phi by curly x delta x, curly phi by curly y delta y, curly phi by curly z delta z, और ये हमारा आ जाएगा डेल्टा फाई। दिस इज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। अब हमारे पास डेल्टा फाई और डेल्टा आर का डॉट प्रोडक्ट डेल्टा फाई के इक्वल आ गया। नाउ P and Q lie on same level surface. Phi and phi plus delta phi are same. डेल्टा फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। ग्रेड फाई विद डेल्टा आर का डॉट प्रोडक्ट ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है दो का डॉट प्रोडक्ट 0 means delta phi is perpendicular to every delta r lying on this surface. Hence, delta phi is normal to the level surface. Phi equal to C. Delta phi is a vector, therefore vector has some magnitude and direction. Magnitude of delta phi and the direction is n cap. N cap is a unit normal vector to the surface. Now we find the magnitude of grade phi. ये जो फिगर है इसमें हम if the perpendicular distance PM between the surfaces through P and Q be delta n, then the rate of change of phi along the normal to the surface P is curly phi by curly n equal to limit delta n approach to 0 delta phi by delta n। डेफिनेशन है ना ये पार्शियल डेरिवेटिव की, और ये हमारा आ जाएगा लिमिट डेल्टा एन अप्रोच टू 0 ग्रेड फाई डॉट विद डेल्टा आर वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा एन, और ये हमारा सोल्व करने के बाद मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड फाई के इक्वल आ जाएगा। मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड फाई is equal to curly phi by curly n. Thus, grade phi is a normal vector to the level surface and its magnitude represent the rate of change of phi along the normal. अब हमारे पास ये जो ग्रेड फाई है इसकी डायरेक्शन तो है नॉर्मल टू लेवल सरफेस, मतलब परपेंडिकुलर टू लेवल सरफेस है, और इसका मैग्नीट्यूड है रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। डायरेक्शनल डेरिवेटिव। Let delta r denotes the length of PQ and u cap be the unit vector in the direction of PQ. The limiting value of delta pi by delta r as delta r approach to 0. जब हमारा पॉइंट पी क्यू पे अप्रोच करेगा तो डेल्टा आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा पाई बाय डेल्टा आर ये बन जाएगी करली पाई बाय करली आर, और इसको कहेंगे हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ पाई अलोंग द डायरेक्शन पी क्यू। डेल्टा आर को हम लिख सकते हैं डेल्टा एन बाय कोस अल्फा। डेल्टा एन
बाय एन कैप डॉट यू कैप। ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं, इनका मैग्नीट्यूड 1 हो गया दोनों का, इसका भी 1 और इसका भी 1 है। जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड, एंगल बिटवीन दीज टू कोस अल्फा, तो ये कोस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, यही हमने लिखा है। देयरफॉर करली फाई बाय करली आर की वैल्यू आ जाएगी लिमिट डेल्टा आर अप्रोच टू 0 एन कैप डॉट विद यू कैप डेल्टा फाई बाय डेल्टा एन, और ये यू कैप डॉट विद डेल्टा फाई बाय डेल्टा एन एन कैप, और डेल्टा फाई बाय डेल्टा एन एन कैप ये है ग्रेड फाई। तो हमारे डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, ये वैल्यू आ जाएगी यू कैप डॉट विद ग्रेड फाई। जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होंगे, जैसे किसी सरफेस के डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने इन डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, पहले उस सरफेस का ग्रेड फाई निकाल लेंगे, उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे यू कैप के साथ, ये हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाएंगे। तो डेल फाई डॉट विद यू कैप, इन दोनों का डॉट डॉट प्रोडक्ट है, पहले का मैग्नीट्यूड और गुना दूसरे का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर इसका मान आ गया कोस अल्फा, ये इसके इक्वल आ जाएगा। कोस अल्फा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है, तो लेस देन इक्वल टू ग्रेड फाई मैग्नीट्यूड। It follows that grade phi gives the maximum rate of change of phi। ये जैसे डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम में लेवल सरफेस है फाई इक्वल टू सी, ये बना हुआ लेवल सरफेस है, ये ग्रेड फाई है, मतलब जो रेड से दिख रहा है ना ये ग्रेड फाई है, मतलब ये इसकी डायरेक्शन है एन कैप, और ये यू कैप लिया हमने, और ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है ग्रेड फाई डॉट विद यू कैप, जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होंगे ग्रेड फाई डॉट विद यू कैप, और यू कैप कैसे निकलेगा, जो वेक्टर पी क्यू है उसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देंगे। नाउ वी कम्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ gradient of scalar point function. Very first property is gradient of a constant multiple of a scalar point function. Grade c phi equal to c grade phi. Now, this is very simple using the definition of grade phi, grade c phi. Now applying del to c phi. C is a constant. The c come out and we get the result c grade phi. And second property is gradient of sum or difference of two scalar point function. Grade phi plus psi or minus psi equal to grade phi plus grade psi or grade phi minus grade psi. This is also very simple using the definition del equal to I curly phi by curly x plus j curly phi by curly y plus k curly phi by curly z phi plus psi. ये सब पे अप्लाई हो जाएगा, curly by curly x of phi plus psi, curly by curly y of phi plus psi, curly by curly z of phi plus psi. Now using the property of derivative, this is curly phi by curly x plus curly psi by curly y, this is curly phi by curly y plus curly psi by curly y, and this is curly phi by curly z plus curly psi by curly z. Now ये अलग अलग हो जाएगा, I curly phi by curly x plus j curly phi by curly y plus k curly phi by curly z, and plus or minus I curly psi by curly x plus j curly psi by curly y plus k curly psi by curly z. So we get the result grade phi plus psi equal to grade phi plus minus grade psi. Third property, gradient of product of two scalar function. Gradient of phi multiply with psi, grade phi psi equal to phi grade psi plus psi grade phi. इसको प्रूव करेंगे, इसकी ग्रेडियंट की डेफिनेशन अप्लाई कर दी,
फाई साई पे, ये इस पे आ जाएगा करली बाय करली एक्स ऑफ फाई साई प्लस जे करली बाय करली एक्स ऑफ फाई साई प्लस के करली बाय करली एक्स ऑफ फाई साई। अब ये फाई एंड साई बोथ आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फाई करली बाय करली एक्स ऑफ साई प्लस करली बाय करली एक्स ऑफ फाई इंटू साई। तो ऐसे ही प्रोडक्ट रूल लगने के बाद ये ऐसे बन जाएगा, तो हमारे पास विकेट रिजल्ट ऐसा आ जाएगा। और फोर्थ प्रॉपर्टी है ग्रेडियंट ऑफ कोसेंस ऑफ टू स्केलर फंक्शन, फाई बाय साई, इसका ग्रेडियंट। तो सिमिलर इसका ग्रेडियंट आ जाएगा साई डेल फाई माइनस फाई डेल साई डिवाइड बाय साई स्क्वायर, प्रोवाइडेड साई स्क्वायर साई इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें भी डेफिनेशन अप्लाई करनी है, ग्रेडियंट अप्लाई किया फाई बाय साई पे, तो ये फाई बाय साई एक्स के साथ करली बाय करली एक्स के साथ चला जाएगा, करली बाय करली जेड के साथ करली बाय इसके इस पे अप्लाई हो जाएगा, करली बाय का ये अलग अलग अप्लाई हो जाएंगे। फिर ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव करेंगे यू बाई वी का फॉर्मूला लग जाएगा, इससे हमारे ये रिजल्ट आ जाएगा। फिर इनको ऐसे लिख लेंगे, लिखने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट, find a unit vector normal to the surface at point -1, -1। जैसा आपने पढ़ा है, जो ग्रेड फाई है वो होता है यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू लेवल सरफेस। इसका मतलब ग्रेड फाई की डायरेक्शन निकालनी है, मतलब जो ये सरफेस है इसका ग्रेडियंट निकाल लेंगे और उसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देंगे उस पॉइंट पे। सबसे पहले इसका ग्रेडियंट निकाल लेंगे यूजिंग द डेफिनेशन आई करली बाय करली एक्स ऑफ दिस प्लस जे करली बाय ऑफ दिस प्लस के करली बाय करली जेड ऑफ दिस। इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव क्या होगा, ये आ जाएगा वाई क्यूब जेड स्क्वायर, और विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा 3x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और विद रिस्पेक्ट टू जेड इसका होगा 2x वाई क्यूब जेड। ये वैल्यू पुट कर दी डेरिवेटिव की, तो ये हमारे पास ग्रेड फाई आ जाएगा। अब ग्रेड फाई की वैल्यू इस पॉइंट पे निकाल लेंगे, x के जगह हम पुट कर देंगे -1, y की जगह पुट कर देंगे -1 और z की जगह पुट कर देंगे 2। अब ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है, ये ग्रेड फाई निकला है जो हमारा 4 -4i -12j प्लस 4k, इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दें। मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 1/√11 i प्लस 3j माइनस k। ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर इस सरफेस का। अब हम निकाल लेंगे फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन दे रखा है हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब एट पॉइंट 2 -1 इन द डायरेक्शन i प्लस 2j प्लस 2k। ये आई जे के वही हैं, आई कैप जे कैप और के कैप, ये अलग अलग नोटेशन बुक वाले ने यूज कर रखे हैं, तो ये बुक की हमने बुक के एग्जाम्पल के लिए है। Find the directional derivative of this function at point 2 -1 1 in the direction of vector। ये तो हमारा पी क्यू हो गया, जैसे इसका ग्रेड फाई निकाल लेंगे इस पॉइंट पे, इसका ग्रेडियंट निकाल लेंगे, ग्रेड एफ निकाल लेंगे, इस पॉइंट पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद ये वेक्टर है पी क्यू, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे
यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देंगे और ग्रेड एफ के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। सबसे पहले ग्रेड एफ निकाल लेंगे, डेफिनेशन यूज कर दो, इसका विद रिस्पेक्ट टू आई, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर आई, इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव आ जाएगा 2xy प्लस जेड क्यूब, ये यहाँ आ जाएगा। फिर इसका विद रिस्पेक्ट टू जेड डेरिवेटिव आ जाएगा 3y(z²), ये यहाँ आ जाएगा। तो इसके बाद x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, y की वैल्यू -1 पुट कर देंगे, z की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। ये वैल्यू पुट करने के बाद आ जाएगा i -3j -3k। ये ग्रेडियंट ऑफ f आ गया पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ग्रेडियंट ऑफ f की वैल्यू। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस डायरेक्शन में निकालने, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, इसे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर, उसका अंडर रूट है, ये आ गया यूनिट वेक्टर। तो ये ग्रेड फाई है, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, आई डॉट जे 0 होता है, जे डॉट के भी 0 होगा, के डॉट आई भी 0 होगा। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी -3/3, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी डायरेक्शनल डेरिवेटिव की। इस फंक्शन के डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे। तो फिर हम अब निकाल लेंगे डेल आर एन, ये वैल्यू आएगी, प्रूव करना है n r⁻n -2r, ये r कैप ही है, ये मतलब r वही है, r वेक्टर, पोजीशन वेक्टर x i y j z के, x i y j z के फंक्शन ले लिया। अब कर लिया बाय कर लिया x निकाल लेंगे, r की वैल्यू हो जाएगी, r मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे x² + y² + z² रेट टू पावर 1/2 थी, ऊपर पावर n थी तो n/2 होगी पावर। तो इसका सबसे पहले आपका कर लिया बाय कर लिया x निकाल लेंगे, n/2 बाहर आ जाएगा, इसकी पावर n/2 -1 इंटू x² का डेरिवेटिव 2x, तो ये आ जाएगा n(x r⁻n/2)। सिमिलरली कर लिया बाय कर ली y आ जाएगा n(y r⁻n/n-2) एंड कर लिया बाय कर ली z की वैल्यू आ जाएगी n(z r⁻n-2). तो फिर इसमें डेफिनेशन है ये हमारा डेफिनेशन, आई कर लिया बाय कर ली x, j कर लिया बाय कर ली y प्लस k कर लिया बाय कर ली z, कर लिया बाय कर ली x, कर लिया बाय कर ली y, कर लिया बाय कर ली z की वैल्यू पुट करेंगे। पुट करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा n r⁻n-2 x i y j z के, n r⁻n-2 ये r यही पोजिशन है हमारा x i y j z। अभी तक जो हमने पढ़ा उसकी समरी क्या है, a directional derivative represents the rate of change of function in any given direction। डायरेक्शनल डेरिवेटिव तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन किसी भी गिवन डायरेक्शन में होता है। द ग्रेडियंट कैन बी यूज्ड इन ए फार्मूला टू कैलकुलेट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, मतलब है उसका ग्रेडियंट निकालना फंक्शन का और उसको डॉट ले लेना है जिस डायरेक्शन में निकालना है उसके यूनिट वेक्टर के साथ। The gradient indicates the direction of greatest change of a function of more than one variable। अब हम ये बताएंगे कि फिजिकल मीनिंग क्या है ग्रेडियंट का, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन। एक बॉल ले लो, ये उस बॉल के 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, अभी ग्रेडियंट का क्या मीनिंग है 3 डायमेंशन। इस बॉल के ऊपर ये पॉइंट्स के पे आपने परपेंडिकुलर नजर आ रहे हैं, ये रेड वाले ये सारे, ये इसके ग्रेडियंट को शो कर रहे हैं, मतलब ये इसके परपेंडिकुलर है, नॉर्मल टू लेवल सरफेस, ये ऊपर का सरफेस है, इसका लेवल सरफेस है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं। If we apply gradient function to 2D structure, तो जैसे ये हमारे पास एक
हिल है तो इस पे चढ़ रहा है, ये रेड एरो है ना, ये रेड है, ये इसकी इसको शो कर रहा है, इसके लैटिट्यूड को लूज कर रहा है या गेन कर रहा है। मीन्स इन 3 डायमेंशन ग्रेडियंट आर द सरफेस नॉर्मल टू पर्टिकुलर पॉइंट्स। जैसे ये है बार की तरफ आ रही है ना परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इन टू डी फॉर्मेट ग्रेडियंट्स टेंजेंट्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट डिसेंडेंट और असेंडेंट। ये देखो, ये कहीं तो ये ढाल गहरा हुआ है, कहीं ढाल उग रहा है, ये 2 डायमेंशन में। ये टेंजेंट है ना, 2 डायमेंशन में टेंजेंट ग्रेडियंट को शो कर रहा है। अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है डल ऑपरेटर इज आल्सो नोन एज। डल ऑपरेटर इज आल्सो नोन एज ग्रेडियंट ऑपरेटर। आंसर है ग्रेडियंट ऑपरेटर। सेकंड क्वेश्चन, the gradient of scalar field V is a vector that represent both magnitude and direction of maximum space rate of increase of V। आइए, ट्रू है ये आंसर है। हमने पढ़ा है ना ग्रेडियंट एक आता है वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हैं, और इसका जो रेट ऑफ चेंज होता है ये मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज को शो करता है। ग्रेडियंट इज टेकन ऑन ए, हमने पढ़ा ग्रेडियंट किसके ऊपर लिया जाता है, स्केलर पॉइंट फंक्शन। फोर्थ है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन v इक्वल टू एक्स वाई जेड। ग्रेड v की वैल्यू आएगी i करली v बाई करली x प्लस j करली v बाई करली y प्लस k करली v बाई करली z। करली v बाई करली x आ जाएगा हमारे पास y z, करली v बाई करली y आ जाएगा x z, करली v बाई करली z x y। तो हमारा ये फर्स्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 5, इफ w इक्वल टू x square y square plus xz the directional derivative of w in the direction। इस डायरेक्शन में निकालने हैं। पहले तो ये जो w है ग्रेड w निकाल लेंगे। ग्रेड w निकालने के बाद ये जो डायरेक्शन है इसकी मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड करेंगे। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर से डिवाइड करके, और ग्रेडियंट हमने w का निकाल के x की वैल्यू 1 पुट कर देनी है, y की वैल्यू 2 और 0 पुट करके इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद 6th क्वेश्चन है फॉर ए स्केलर फंक्शन, ये फंक्शन दे रखा है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये भी सेम इसी तरह डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर p एंड q इज 0। डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो दो वेक्टर का, द एंगल उनके बीच में कितना एंगल होगा। डॉट प्रोडक्ट में जैसे पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड इंटू कोस ऑफ एंगल। कोस 0 कब होता है, कोस 0 होता है 90 डिग्री पे, तो डॉट प्रोडक्ट 0 मतलब है कोस 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री। ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन इज ए कांस्टेंट। ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन इज ए कांस्टेंट, नहीं कांस्टेंट नहीं है, फॉल्स है, कांस्टेंट नहीं होता ग्रेडियंट। द मैथमेटिकल परसेप्शन ऑफ द ग्रेडियंट इज सेड टू बी। आपने पढ़ा है क्या होता है ग्रेडियंट, करली मतलब डेरिवेटिव है ना, तो ये स्लोप होगा, स्लोप बोलते हैं इसको। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन गिवन बाय इतने एट पॉइंट इतना, तो वही इनका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x आ गया, विद रिस्पेक्ट टू y 2y आ गया, विद रिस्पेक्ट टू z 2z आ गया, तो i 2x प्लस j 2y प्लस k 2z, इनकी वैल्यू x y z की 1 1 पुट कर देंगे, 2i प्लस 2j प्लस 2k, ये आंसर बी होगा।
तब हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर जारी में